Hello friends, my name is Ritesh and welcome to the Hindu analysis for today. We will be discussing the top stories from the perspective of CLAT 2022. Let's get started. Alright, so you can see a host of stories today. काफ़ी सारा news है आज, ठीक है. Modi first day of US visit. So our Prime Minister Narendra Modi is on a visit to United States of America. Multiple events are scheduled. तो हम बात करेंगे फर्स्ट डे के बारे में. Then caste census of backward classes difficult. This is a statement made by central government to Supreme Court. We'll talk about it. Center states outline plans to stem pollution. So this is specifically talking about the NCR region. We'll talk about this. Rupees 7523 crore order for Arjun Mk1A tanks. So this is related to defense. Arjun tanks order has been placed. We'll talk about this. Jabs to be given at home for disabled. Okay, that's an interesting update from COVID sphere. Supreme Court introduces faster system to send records. Okay, very important. We'll talk about this. Government expense compensation ambit, again related to COVID. Okay, in fact, there are 3 articles related to COVID today. Again, you will see US authorizes Pfizer booster shots. That's again related to COVID. China sends fighter jets towards Taiwan. Controversial, contentious and related to international sphere. We'll talk about this. And European Union plans one mobile charging port for all, which is related to science and technology as well as business. So some really interesting updates today. We'll talk about them one by one. And there is a research potential also in certain. So we'll see to that. We'll look at first one. So Prime Minister Narendra Modi meets, okay, so he started his US visit from Thursday. Okay, that means yesterday. And he initially met CEOs of 5 Fortune 500 companies, and then he had bilateral meetings with US Vice President Kamala Harris, then Japanese Prime Minister Yoshihide Suga and Australian Prime Minister Scott Morrison. ठीक है, तो कौन सी 5 कंपनी से ये मिले? He met the CEO of Qualcomm, First Solar, Adobe, General Atomics and the Blackstone Group. All of them operate in different segments. For example, Qualcomm is into semiconductors. First Solar is a renewable energy company. Adobe is a software company. General Atomics is energy systems and arms manufacturer, and Blackstone Group is a very famous private equity or investments group. Okay. Now he discussed because why these 5 companies, because they have substantial stakes and investments into India. And then he had meeting with, as I told you, that Australian Prime Minister, Japanese Prime Minister and US Vice President. Okay, but what is important is his meeting on Friday with Joe Biden, okay, regarding comprehensive global strategic partnership, and then obviously Quad summit between India, Australia, USA and Japan. Okay, so we'll keep you updated. ठीक है, और ये हमें एक नोट बनाना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समिट की अल्टीमेटली क्या अचीव हुआ यूएस दौरे पे. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी इनका एड्रेस शेड्यूल्ड है, वहाँ इन्होंने क्या बोला, बाकी इन लोगों की क्या बात हुई, क्या कोई इंपॉर्टेंट स्टेप फाइनलाइज हुआ, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. नेक्स्ट अपडेट, कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस डिफिकल्ट, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट. ओके, देखो हुआ क्या है. बेसिकली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने एक पिटीशन फाइल की थी. उसमें इन्होंने कहा था कि जो 2021 डिजिटल सेंसस होने वाला है उसमें कास्ट बेस्ड डेटा भी निकाला जाए. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा देखो कास्ट बेस्ड डेटा जो है वो हम निकालना ही नहीं चाहते, और ये हमने बहुत पहले एज अ पॉलिसी डिसाइड कर लिया था कि हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ के बाकी किसी बैकवर्ड क्लास का डेटा नहीं निकालेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है. तो सेंटर टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट अ कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट एंड कम्बरसम. तो ये कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली, इसके बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो हम बैकवर्ड क्लासेस का डेटा नहीं निकाल सकते. हम शेड्यूल्ड कास्ट का निकाल रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब का निकाल रहे हैं, इसके आगे हमारा आप कहोगे ओबीसी लिस्ट के लिए हम डेटा निकाल दें, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये कहते हैं कि एक्सक्लूजन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी अदर कास्ट अदर देन एससी एंड एसटी इज अ कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन. तो उन्होंने कहा 1951 से हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि हम ये इस तरह का कोई डेटा निकालेंगे ही नहीं. ठीक है, तो ये क्यों कहते हैं, ये कहते हैं इवन जो 2011 का SECC था, सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उन्होंने कहा था वो जो डेटा है वो डेटा भी अपने आप में इनकम्प्लीट है, वो डेटा भी जो है वो ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं है, वो जो डेटा है उसे किसी ऑफिशियल पर्पज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो बेसिकली यूजलेस डेटा है. ठीक है,
तो ये क्या कहता है कि अगर हम इस तरह का कोई डेटा निकालते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मैनिपुलेशन हो सकता है, सेंसस का अपना डेटा मैनिपुलेट हो सकता है मल्टीपल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, और हो सकता है हमारा पॉपुलेशन काउंट ही सही नहीं आए, ठीक है, सेंसस के डेटा के साथ छेड़छाड़ कर दी जाए। इसके अलावा इट इज टू लेट नाउ टू एन्यूमरेट कास्ट इनटू द सेंसस, और अगर फिर भी आप कहें कि भाई नहीं हमें करना ही है तो भी इट्स टू लेट, क्योंकि सेंसस शुरू होने को है और सेंसस की तैयारी 4 साल पहले शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप एकदम से लास्ट मोमेंट पे नहीं कह सकते कि सेंसस के डिजाइन अब ऐसी कर दो, क्योंकि सेंसस के लिए फॉर्म छप चुके हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल छप चुके हैं, सब लोगों को ट्रेन किया जा चुका है। अब एकदम से हम सेंसस की एक्सरसाइज को नहीं बदल सकते, ठीक है। और अगर हम बदलना चाहेंगे तो फिर अगली बार कब मौका आएगा, 10 साल बाद, ठीक है। तो ये फिलहाल गवर्नमेंट ने कहा है। देखो अभी बहुत सारी डिमांड उठ रही थी कास्ट बेस्ड सेंसस की। इफ यू रिमेंबर, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अधिकार दिया गया था कि अब आप अपनी ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं, और उसके बाद से फिर बिहार के सीएम मिले थे नीतीश कुमार साहब, और भी कई स्टेट से ये डिमांड आई थी कि आप पहले कास्ट सेंसस करवाएं ताकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चले कि कौन सी कास्ट को हम एक्चुअली बैकवर्ड कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई स्टांस बताया नहीं था, बट यहां पर गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया अपना स्टांस कि हम कास्ट सेंसस के फेवर में नहीं है। ओके देखो सर्दियां शुरू होने वाली है, विंटर्स आने वाली है। जब विंटर्स आती है तो स्पेसिफिकली जो एनसीआर रीजन है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का रीजन है, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन सब के लिए बड़ी समस्या का समय होता है ये। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे विंटर आती है वैसे वैसे एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, तो जिसे हम कहते हैं स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग, वो यहाँ पर होने लग जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हो जाता है भाई सर्दियों में? तो सर्दियों में क्या होने लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्टबल बर्निंग का ये टाइम होता है, यहाँ पर जब चावल की फसल आसपास कट जाती है और फिर नई गेहूं की फसल आने लगती है, उससे पहले आसपास के स्टेट्स में फसलें जलने शुरू हो जाती है और उससे धुआं आना शुरू हो जाता है। और इस दौरान वैसे भी हवा की क्वालिटी भी कुछ इस तरह की रहती है कि जो थर्मल पोल्यूशन है और भी बहुत तरह के पोल्यूशंस हैं वो जो है हवा में जाकर कंडेंस होता है, ठीक है। तो इस वजह से इस समय जो है आपको काफ़ी सारे जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है दिल्ली के सिटीजन्स को। तो अब जब सर्दियां शुरू होने वाली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स ने मिलकर के प्लान बनाया है कि किस तरीके से इसे काउंटर किया जाए, ठीक है। तो देखो अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग अरविंद केजरीवाल साहब ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने बिल्कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला था। उन्होंने कहा था कि देखो दिल्ली की एयर ऑन इटसेल्फ इज क्लीन, ठीक है। और उन्होंने कहा था आने वाले थोड़े टाइम में दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग स्टेट्स ने कोई एक्शन नहीं लिया स्टबल बर्निंग के खिलाफ। सो बेसिकली इज ट्राइंग टू से कि अरे हमने तो सब कुछ कर दिया एयर क्वालिटी के लिए, अब ये बाकी बगल वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने अभी मीटिंग कन्वीन की और उसमें ऐसा कोई नया मेजर अनाउंस नहीं किया इन्होंने। दे हैव नॉट अनाउंस एनी न्यू मेजर। व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू इज जो उनको एग्जिस्टिंग आइडियाज है उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया है। तो हरियाणा गवर्नमेंट स्पेंडिंग अबाउट 200 करोड़ टू डिसवेड और डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम बर्निंग द राइस स्टबल। देखो थोड़े टाइम पहले हमने कवर किया था पंजाब में उन लोगों ने पैडी फायर बेसिकली पैडी स्टबल फायर्ड बॉयलर्स लगाने की बात की थी। तो इस तरह के और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश इज डिप्लॉइंग एन ऑर्गेनिक केमिकल, एक ऑर्गेनिक केमिकल उत्तर प्रदेश इस्तेमाल कर रहा है विच इज द डीकंपोजर विच कन्वर्ट्स दिस पैडी स्ट्रॉ इनटू मैन्योर, ठीक है। तो इस तरह का बाकी स्टेट्स भी अप्लाई कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तकरीबन 6 एकड़ में कर रहा है, फिर हरियाणा तकरीबन 1 लाख एकड़ में कर रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 6 लाख एकड़ में कर रहा है, उत्तर प्रदेश देन हरियाणा 1 लाख एकड़ में, पंजाब 5 लाख एकड़ में और दिल्ली 4000 एकड़ में इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा क्या किया जा रहा है, एनसीआर में उन्होंने कहा है कि आपके कुछ प्लांट्स में तो बायोमास, मतलब आपको पैडी स्ट्रॉ को एज अ फ्यूल यूज करना ही पड़ेगा। मैंडेटिंग द यूज ऑफ बायोमास विद 50% पैडी स्ट्रॉ एज अ सप्लीमेंट फ्यूल इन कोल प्लांट्स। एनसीआर रीजन में उन्होंने कहा कि कोल प्लांट्स में आपको मिनिमम इतना जो है पैडी स्ट्रॉ यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में पैडी जो आपका जो ये स्टबल है इसे एज अ फॉडर इस्तेमाल करने की बात की जा रही है फॉर कैटल, ठीक है। तो अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स हैं जिन पर इनमें बात हुई है। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ डिक्रीजिंग एयर क्वालिटी इन एनसीआर रीजन। अच्छा देखो अर्जुन टैंक्स के लिए ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है। अर्जुन MK1 टैंक्स, तो बेसिकली इसका ऑर्डर किसको मिला है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री इन अवाडी, ठीक है। ये जो बैटल टैंक्स हैं इनके लिए 7523 करोड़ रुपए का ऑर्डर सैंक्शन किया गया। ये टैंक्स कौन बनाता है, ये टैंक्स बनाया है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड। इसकी जो डिजाइनिंग की है वो DRDO की एक लेबोरेटरी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इसने इसको डिजाइन किया है। और ये बनेंगे कहां पर, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री एट अवाडी। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 2 अर्जुन टैंक्स रेजिमेंट है और फर्दर टैंक्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है, ठीक है।
अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। देखो थोड़े समय पहले हम लोगों ने एक न्यूज़ अपडेट में शायद बात की थी, हिंदू में एक आर्टिकल भी आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा था कि जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, जो नर्सिंग मदर्स हैं, वो लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये वर्डिक्ट दिया है कि जो लोग डिसेबल्ड है, चल नहीं सकते, लिमिटेड मोबिलिटी है या स्पेशल नीड है कोई ऐसी जिसकी वजह से वो जा नहीं सकते वैक्सीनेशन सेंटर पे कोविड वैक्सीन के लिए, उनको घर पे आकर के वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन फाइनली एक रीजन वो लोग लेकर के आए। पर्सन्स विद रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, डिसेबिलिटीज एंड पीपल विद स्पेशल नीड्स कैन गेट कोविड वैक्सीनेशन एट होम। इस दौरान पूरे प्रोटोकॉल का फायदा होगा, पूरे प्रोटोकॉल का पालन होगा, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि इन्फेक्शन फैले। सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूसेस फास्टर सिस्टम टू सेंड रिकॉर्ड्स। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है और इट्स वाज अ क्राइंग नीड, सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली कम्युनिकेशन कैन बी सेंट इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा था कि लेट से कोई अंडर ट्रायल है, ठीक है, उसके लिए ऑर्डर पास हो गया कि भाई उसे रिलीज कर दो, मगर जब तक उस ऑर्डर की फिजिकल कॉपी नहीं पहुंचेगी तब तक वो बंदा जेल में बैठा रहेगा। ठीक है, मतलब उसे गवर्नमेंट ने रिहा कर दिया, कोर्ट ने रिहा कर दिया है, बट क्योंकि उसकी फिजिकल कॉपी उसके प्रिजन तक नहीं पहुंची है तब तक वो जेल में है, और कई बार इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। या किसी व्यक्ति का अरेस्ट ही रोक दिया है, उस पर स्टे आ गया है, मगर अगेन जब तक फिजिकल कॉपी नहीं पहुंची है तो उसे जाके अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। ठीक है, इस तरह के मैकेनिज्म्स हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया कि यार अब हम वो कबूतरों वाले युग में थोड़ी है कि हम आसमान में देखेंगे कि एक कबूतर आएगा और चिट्ठी लेकर के आएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा था अब तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, आप ईमेल कर दो ऑर्डर्स को, सामने वाला व्यक्ति अपने मोबाइल पे चेक कर लेगा। ठीक है, और इसके लिए एक सिक्योर प्रोसेस बना दो कि इसमें कहीं मैनिपुलेशन ना हो। ठीक है, क्यों एक बंदा 1 घंटा भी एडिशनल जेल में रहे जिसको उसको रिहा कर दिया है कोर्ट ने, क्यों एक व्यक्ति को जबरदस्ती अरेस्ट फेस करना पड़े। इनफैक्ट इसका फायदा यहां तक भी हो सकता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ऑब्जर्वेशन आया है कि सपोज किसी को फांसी की सजा होने वाली है और उसकी फांसी की सजा किसी वजह से रोक दी गई है, अब अगर उसका ऑर्डर पहुंचने में देर हो गई तो, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम बाय व्हिच क्रूशियल डिसीजंस इंक्लूडिंग ऑर्डर्स ऑन बेल एंड स्टे ऑफ अरेस्ट कैन बी कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली। इस सिस्टम का क्या नाम दिया इन्होंने, फास्टर सिस्टम, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। क्यों ये सिस्टम लेकर आया गया? अंडर ट्रायल्स आर नॉट मेड टू वेट बिहाइंड बार्स टू बी रिलीज्ड बिकॉज द सर्टिफाइड हार्ड कॉपीज टुक टाइम टू रीच द प्रिजन। जो भी अंडर ट्रायल है सिर्फ इसलिए जेल में ना सड़ता रहे क्योंकि उसके रिलीज के प्रिजन के ऑर्डर्स प्रिजन तक नहीं पहुंचे, या अननेसेसरी अरेस्ट को प्रिवेंट किया जा सके, कस्टडी ऑफ पीपल को प्रिवेंट किया जा सके आफ्टर द कोर्ट हैज ऑलरेडी ग्रांटेड देम इट्स प्रोटेक्शन। अगर कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दे दिया है कि इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, फिर भी उसके बावजूद क्योंकि वो ऑर्डर्स नहीं पहुंचे उनको अरेस्ट किया जा रहा है, इस तरह की सिचुएशन ना हो। इट में इवन कम्युनिकेट अ स्टे ऑन एन एग्जीक्यूशन ऑर्डर्ड बाय द फाइनल कोर्ट। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन यानी कैपिटल पनिशमेंट को भी अगर स्टे ऑर्डर आ गया है तो उसे रोका जा सकता है। ठीक है, टाइमली रोका जा सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंस कॉम्पनसेशन एम्बिट। देखो कल हमने बात की थी कि गवर्नमेंट ने कहा कि कोविड से अगर किसी की डेथ हुई है तो 50,000 रुपए का कंपनसेशन उसके परिवार वालों को दिया जाएगा। ठीक है, आज गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया मतलब अमाउंट नहीं बढ़ा दिया है, उसकी रेंज बढ़ा दी गई है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आपकी कोविड रिपोर्ट आई है, किसी की भी कोविड रिपोर्ट आई है और उसके 30 दिन के अंदर वो सुसाइड कर लेता है, तो ये माना जाएगा कि वो कोविड के सदमे की वजह से उसने सुसाइड किया और उस केस में उसके परिवार वालों को 50,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड बाय सुसाइड विद इन 30 डेज ऑफ अ कोविड-19 डायग्नोसिस वुड बी एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल हेल्प। दे वुड बी एलिजिबल फॉर 50,000 एक्स ग्रेशिया पेमेंट। ठीक है, तो यानी अगर किसी का कोविड पॉजिटिव आया है और विद इन अ मंथ उसने सुसाइड की गई है तो गवर्नमेंट ये मानेगी कि उसने ये सुसाइड कोविड के सदमे की वजह से की है और उसके परिवार वालों को एज अ कॉम्पनसेशन 50,000 दिया जाएगा। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, वही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की तरफ से पैसा आएगा। जैसे बाकी मशीनरी काम कर रही है वैसे ही इसके लिए भी मशीनरी काम करेगी। चाइना सेंड्स फाइटर जेट्स टुवर्ड्स ताइवान। देखो हुआ क्या है, चाइना ने कुछ 19 फाइटर जेट्स ताइवान के आसपास भेजे, ताइवान के एयर जोन में भेजे। क्यों? शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। क्यों शक्ति प्रदर्शन करना है? क्योंकि ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है। सो इन चाइना देयर इज द सेइंग दे कॉल्ड वन चाइना। ठीक है, ताइवान
को चाइना अपना हिस्सा मानता है और इसको लेकर के चाइना और ताइवान में काफ़ी विवाद है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करें, ये बात करें कि ये प्लेन्स क्यों भेजे गए। ये प्लेन्स इसलिए भेजे गए क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप विच इज़ अ बिग ट्रेड पैक्ट, वेरी बिग ट्रेड पैक्ट। उस पैक्ट में शामिल होने के लिए चाइना ने अप्लाई किया और उसके बाद ताइवान ने भी अप्लाई किया। अब चाइना का प्रॉब्लम क्या है, चाइना ने कहा जब मैंने अप्लाई कर दिया तो मतलब तुम तो मेरे ही हिस्से हो, तो मैंने अप्लाई कर दिया मतलब तुमने भी अप्लाई कर दिया। तुम अलग से अप्लाई करने के बाद क्या कहना चाहते हो कि तुम कोई अलग कंट्री हो? तुम्हें अलग कंट्री नहीं हो, तुम चाइना के ही हिस्से हो। ठीक है, तो ताइवान को डराने के लिए फिर ये फाइटर प्लेन्स भेजे गए। अब ताइवान की जो करंट रिजाइम है उसके साथ चाइना के रिलेशंस काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि अब इस बीच में थोड़ी सी यूएसए का भी हाथ है। यूएस के जो एनवॉयज हैं वो अलग से ताइवान से मिलने गए। ठीक है, अब ताइवान से मिलने गए मतलब दे आर रिकॉग्नाइजिंग ताइवान एज अ सेपरेट कंट्री। चाइना कहता है अरे ये तो मेरी कंट्री है, अगर आपका डिप्लोमेट आना है तो फिर वो चाइना में आना चाहिए था, ताइवान में नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात, यूएस ने ताइवान के स्ट्रेट्स के पास में अपने वेसल्स भेजे, तो चाइना उन सारी चीज़ों से परेशान है। तो ऑलरेडी इस पॉस्चरिंग को लेकर के तो चाइना सेंड 19 एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स ताइवान। Taiwan has submitted an application to join the 11-nation comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership, but China has already formally applied. So China views Taiwan as its own province, and Beijing accuses the current ruling, जो वहाँ पर current Democratic Progressive Party है और उनके जो president है साई इंग वेन, तो वो कहना चाह रहे हैं चाइना की ये इंडिपेंडेंस सेट कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि चाइना से अलग हो जाए। ठीक है, तो दे आर बीइंग रूल्ड सेपरेटली। चाइना एक अलग तरीके से रूल किया जा रहा है, ताइवान की एक अलग लीडरशिप है, बट चाइना कंसिडर्स ताइवान एज इट्स ओन कंट्री। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब देखो यूएसए ने ऑथराइज किया फाइजर। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे बात की थी कि फाइजर इज द ओनली कंपनी और द फर्स्ट कंपनी ऑल्सो जिसको यूएसए ने फुल अप्रूवल दिया था। ठीक है, और अब फाइजर को उन्होंने बूस्टर शॉट्स के लिए परमिशन दे दी गई है। तो बूस्टर डोज यानी थर्ड डोज, अभी तक आपने क्या देखा था, वैक्सीन के 2 डोज होते हैं, अब एक तीसरा डोज भी होगा, बूस्टर डोज। ठीक है, ये बूस्टर डोज लेकिन किनको दिया जाएगा? जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक है, जो ज़्यादा ससेप्टेबल है। तो बूस्टर डोज उन्होंने कहा कि जो 65 ईयर्स पे है, ठीक है, पीपल हु आर एजेड ओवर 65, या फिर वो एडल्ट्स जिनका हाई रिस्क ऑफ सीवियर डिजीज है, यानी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज है ज़्यादा, ऐसे एडल्ट्स को दी जाएंगी बूस्टर डोज, ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके और उन्हें बचाया जा सके। तो फाइजर की जो वैक्सीन है उसका बूस्टर डोज दिया जाएगा किनको? जिनकी एज 65 से ज़्यादा है, या फिर ऐसे एडल्ट्स जिनको सीवियर डिजीजेस का ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, सो दे विल बी एलिजिबल फॉर अ थर्ड शॉट 6 मंथ्स आफ्टर देयर सेकेंड, मतलब दूसरी डोज के 6 महीने बाद बूस्टर डोज लगाई जा सकेगी। ठीक है, तो यूएसए में शुरू हो गया है, हो सकता है हमें हिंदुस्तान में भी कुछ नए अनाउंसमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, अच्छा, EU प्लान्स 1 मोबाइल चार्जिंग पोर्ट फॉर ऑल। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है और एप्पल के लिए अच्छी बात नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है कि हम जितने भी हमारे टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, उन सब के लिए हम एक सिंगल पोर्ट लेकर आना चाहते हैं। कौन सा पोर्ट लेकर आना चाहते हैं? जो हमारा C कनेक्टर है, ठीक है, जो एप्पल में नहीं लगता, वो कनेक्टर हम लेकर आएंगे और वो कनेक्टर सब पे काम करेगा। वो स्मार्टफोन पे भी काम करेगा, टैबलेट पे, कैमरा पे, हेडफोन पे, पोर्टेबल स्पीकर पे, वीडियो गेम कंसोल्स पे, सब पे वही चार्जिंग पोर्ट लगेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली वो एप्पल पे काम नहीं करता, तो एप्पल के लिए एक आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक ड्रॉबैक है ये। ठीक है, तो ऐसा क्यों लेकर आ रहे हैं वो लोग कहते हैं कि इससे एक तो बहुत सारा पैसा सेव होगा, अदरवाइज सबके लिए अलग अलग चार्जर खरीदना पड़ता है। ठीक है, और उससे एनवायरनमेंट को भी बहुत फायदा होगा। तो ये सारी चीजें मिलाकर के यूरोपियन यूनियन ने एक डिसीजन लिया है। दे एम टू हैव अ कॉमन चार्जिंग पोर्ट फॉर मोबाइल फोन, टैबलेट, हेडफोन, ऑल दीज गैजेट्स, एंड चार्जर्स विल बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऐसा अनाउंसमेंट यूरोपियन यूनियन ने किया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी आज के न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर हम अब आज की स्टोरीज खत्म करते हैं और अब बात आती है क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि WHO के बारे में आप मुझे कुछ बताएं, और आप में से काफ़ी लोगों ने जवाब दिया कि WHO कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो हमने कहा 7 अप्रैल 1948 WHO एस्टैब्लिश हुआ था। WHO के चीफ कौन है? तो टेड्रोस एडेनॉम WHO चीफ हैं। और हमने पूछा था WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड WHO के हेडक्वार्टर्स हैं। अब इसमें अगेन आप लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन एडिशनल दी उसमें कमेंट सेक्शन में, जिनको बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन किसी ने दी कि वर्ल्ड हेल्थ डे
ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है? जब WHO एस्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948, है ना। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स हैं जो आते रहेंगे। अगेन आप लोग जो लोग जवाब दे रहे हैं, अगर आप खुद भी कमेंट सेक्शन उठा करके जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों ने दी है और शायद आपको भी उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव ना। अभी आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम ताइवान के बारे में बात कर रहे थे, चाइना ताइवान। देखो आज के टॉपिक में बैकग्राउंड रिसर्च करने को कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब हम ये क्लास में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें तो मैं वो बैकग्राउंड काफ़ी कुछ हम और भी बातें करेंगे, जैसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक्चुअली क्या है, या चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, थोड़ा सा हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हो। अब ताइवान के बारे में बात हो रही थी तो आज का क्वेश्चन ताइवान पे ही ले लेते हैं। तो आप मुझे ताइवान के बारे में कुछ बताएं, ताइवान की लीडरशिप के बारे में बताएं, ताइवान की कैपिटल के बारे में बताएं, ताइवान की करेंसी के बारे में बताएं, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आई विल सी टू इट एंड रिस्पॉन्ड टुमारो विद सम न्यू स्टोरीज। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।